चलो अच्छा, so assalamualaikum guys. Today we are going to do IGCSE paper 2. All the students from O levels and IGCSE are supposed to attend this because हम initially जैसे हम हमेशा करते हैं, we'll be doing the common question जो दोनों के syllabus का part है, and then IGCSE वाले we'll do it in the end. So the paper is May June 2025 variant 2-1 of summer basically. ठीक है, so ये May June 25 का paper है. Just to make sure that you understand that for IGCSE this is going to be paper 2 non-calculator, and for O levels this is going to be paper 1. ठीक है, O levels के लिए ये paper 1 होगा. So just like the way we solve questions, first हम सारे easy questions को that does not require much reading time उसको mark करेंगे. We'll try those easier questions first, and then we'll go on to those questions that require a relatively higher reading time or are difficult. ठीक है, so question 1 that seems to be easy. Question 2 not much reading required, just find करनी है कुछ values, so हम 2 भी कर लेंगे. 3 reading time required, skip it. 4 easy, फौरन कर लो. 6 debatable, ठीक है, I won't say do it or no. 8 again no reading time required, फटाफट कर सकते हो. 10 circle properties, if it's a strong chapter for you, do it, otherwise do it in the second attempt. Question number 11, again some reading time required. 12 reading time required. 13 reading time required. Let's move on to 14. Functions hai bagair kuch padhe you can easily move on to these questions. 14 ke a b c d all of these parts you can do these. 15 a surge you can do this. b you can do. 16 you can do. ये सारे वो questions है जिसमें पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. Question देखा, values देखी, फौरन start किया, easy question, सवाल solve किया, mark secure किया, and then you move on to the second attempt. ठीक है, 19 you can try. 20 जो है हमारे पास IGCSE का है, ये लास्ट में करेंगे हम. एंड देन what else do we have? We have 22 also for IGCSE, not for O level students, and 23 is one of the easier questions that we can try. ठीक है, so I believe we are done with the first marking. पहले पेपर को हमने अच्छे से go through करना है, 2-3 मिनट क्वेश्चन मार्क करना है, and then we try these questions first. ठीक है, अच्छा, now that we स्टार्ट नाउ हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है फॉर दिस केस जहाँ पे सी एंड सी को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, एंड देन वील बी सॉल्विंग डी एंड डीज टुगेदर. सो व्हेन वी ऐड दिस बेटा 7c प्लस सी क्या होता है, दैट इज 8c. नॉट वेरी डिफिकल्ट. -5 प्लस 3 क्या होगा, -5 प्लस 3 इज गोइंग टू गिव अस -2 ऑफ डी. ठीक है, चलो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. हमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, जहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस जो है ना दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को जरा देखें कि आप लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे. हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, डब्ल्यू एंड वाई. कौन सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. लेट मी रीड इट अगेन. इट सेज द डायग्राम शोस टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग टू स्ट्रेट लाइंस. तो पैरेलल लाइंस कौन सी, हाउ डू वी नो, दीज आर गोइंग टू द पैरेलल लाइंस जो कि एरो से शो हो रही हैं. ठीक है, एंड जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो ऑब्वियसली ये वाली होंगी. ठीक है, सो हमें अब फिगर आउट करनी है डब्ल्यू, एक्स एंड वाई की वैल्यूज. वेयर ईशा सेज दैट एक्स इज सपोज्ड टू बी 76, एक्स इज एब्सोल्युटली दैट सपोज्ड टू बी 76 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. कौन सी प्रॉपर्टी लगी बच्चे, Z shape वाली प्रॉपर्टी लगी for the case of parallel lines. So बेटा ये angle 76 is going to be same as this. So we would say that x is 76. ठीक है, x find कर लिया 76. अब बताओ, अब इसके बाद और कैसे find कर सकते हैं. ठीक है, x आ गया, बाकी दो वैल्यूज बताओ, w and y कैसे निकालोगे. 180 minus 158. ठीक है, so I think you are trying to find this particular angle. ये find करना चाह रही है from what I understand. So if that is what you're trying, ठीक है, गुड जॉब. सो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा 22, एंड देन यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल बाय डूइंग व्हाट, कंसीडरिंग दिस टू बी अ ट्रायंगल. इसको आप ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी 180 माइनस ऑफ 76 प्लस ऑफ 22, एंड यू कैन फाइंड दीज वैल्यूज. सो यू गाइस से दैट दिस वैल्यू इज सपोज्ड टू बी 82. ठीक है, मैं बताता हूँ. सो हमारे पास y आया 82. अच्छा, हमने 22 इस तरीके से निकाला है बेटा बिकॉज दिस इज वाज अ स्ट्रेट लाइन ना. सो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, सो दिस होल एंगल इज सपोज्ड टू बी 180. सो हमने 180 में से 158 सब्ट्रैक्ट किया, सो 22 आ गया. अब मुझे बताओ w कैसे निकलेगा. हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड w, एक बहुत बड़ा w. सर वो 70 से वाई और वो वर्टिकल वर्टिकल एंगल्स बन जाएंगे जो 76 का, और वो जो साइड पे एंगल है उसका कोई नाम नहीं है. I'm not sure what you're saying, but I think what you're saying should be correct.
गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। अच्छा, नाउ व्हाट यू कैन डू, मल्टीपल वेज हैं, आप लोगों ने थोड़ी सी ख्वारी की, गुड जॉब हिबा, दैट्स अ मच बेटर अप्रोच। नाउ व्हाट यू गाइस डिड इज आपने इसको 22 निकाला और स्ट्रेट लाइन में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, दैट इज करेक्ट, नो डाउट, बिल्कुल सही है। बट if you have a look you can also see that there is an f over here, एक f है corresponding angle का, so 158 and 158 would be same because these lines were parallel to each other. I hope this makes sense, ठीक है, सारी approaches correct हैं, कुछ में ख्वारी कम लगेगी, कुछ में ज्यादा लगेगी, so you need to be smart about it and the answer should be 158, ठीक है। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, 4 को कैसे करेंगे जल्दी से बताओ, व्हाट आर वी गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट, कर लें 5 - 2 6 - 3 सिंपल एलसीएम लेके, या वी कांट डू दैट, कर सकते हैं इसको सॉल्व, पहले इसका एलसीएम ले लें, यस, नहीं कर सकते, ऐसा क्यों, कौन सा रूल लगेगा, बॉडमस रूल लगेगा, हेबा नहीं कर सकते, ठीक है। सो बॉडमस की वजह से वी नीड टू सॉल्व दिस पार्ट फर्स्ट, सो व्हेन वी सॉल्व दिस पार्ट व्हाट हैपेंस, ठीक है, गुड जॉब। सो व्हाट हैपेंस बेटा, सिंपलीफाई कर सकते हो, 3 और 3 कैंसिल, 2 and 4 2 and 8 कैंसिल, ठीक है, सो क्या हो जाएगा 5/6 माइनस ऑफ 1/4। अब आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम के लिए दिस इज सपोज टू बी मल्टीप्लाइड विद 4, दिस इज सपोज टू बी मल्टीप्लाइड विद 6, मल्टीप्लाइड विद 4, मल्टीप्लाइड विद 6, सो दिस इज गोइंग टू बी 20/24, ठीक है, माइनस ऑफ 6/24 as well. So beta 20 minus 6 क्या आता है, that is 14/24. So when you simplify this with 2, so this is going to be 7/12 for this case, ठीक है। चलो गुड जॉब, आगे बढ़ते हैं जरा, वेक्टर्स, ये पार्ट तो बहुत इजी है, आई एम श्योर यू गाइस कैन डू दिस, कर लोगे पार्ट ए, ठीक है, स्किप, इजाजत, चलो अगर इजाजत है तो लेट्स सॉल्व पार्ट बी। पार्ट बी क्या कहता है, बी भी बहुत आसान है, यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट अबाउट इट, चलो कर लो भाई। सो यू आर सपोज टू सॉल्व 2 टाइम्स ऑफ m, m की वैल्यू क्या थी 11 and 5, एंड देन माइनस ऑफ n, बेटा n की वैल्यू क्या थी 8 and -3, सो 2 टाइम्स ऑफ 11 इज व्हाट, दैट इज 22, एंड 2 टाइम्स ऑफ 5 बेटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, केयरफुली इस चीज को समझना। सो दिस इज गोइंग टू बी 22 and 10 माइनस ऑफ 8 and -3, so beta 22 minus 8 is what, that gives us 14, and 10 minus minus plus हो जाएगा, so that is going to be 13, ठीक है। फिर कहता है वेक्टर को आपने सॉल्व करना है ये जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता था, if this is my value of x, this is my value of y, the formula was root of x square plus of y square, तो ये क्या हो जाएगा, can I say it's going to be root of 5 square plus of y value was under root of 7, तो इस पूरे का स्क्वायर इज सपोज टू बी इक्विवेलेंट टू 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, सो अंदर क्या बचेगा, अंदर विल बी लेफ्ट विद 25 प्लस ऑफ y इज इक्वल्स टू 7। नाउ हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दिस रूट, इस रूट से जान छुड़ाने के लिए आई हैव टू अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विद 25 प्लस ऑफ y इज इक्वल्स टू 49, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, दैट इज गोइंग टू बी, बेटा this vector has a magnitude of 7, the length of it is 7, सर आपने क्वेश्चन में वो given अंडर रूट की जगह 7 लिखा हुआ है, y होगा कहाँ, अच्छा 5 ये वाला अंडर है, रूट हाँ, 5 दिस इज नॉट 7, स्क्वायर। दिस वाज y, सॉरी दिस वाज y, मैंने आगे देखो y लिखा, तो दिस वाज y, ये y था, ठीक है। सो तो आपने इसको सॉल्व कर लिए, क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 49 minus of 25 and the answer is going to be 24, हमने y की वैल्यू निकालनी थी। आई होप यू गेट दिस पार्ट, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे, जल्दी से देख लो एक नजर, एनी डिफिकल्टी विद दिस पार्ट, नो, चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं। सर्कल प्रॉपर्टीज, एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, बेटा सेंटर ओ है, हमारे पास 3 पॉइंट्स है जो सर्कमफेरेंस पे टच कर रहे हैं, एंड देन सेज डी ई इज अ टेंजेंट, टेंजेंट है डी ई हमारे पास, मैं कर देता हूँ, अच्छा मैं कर देता हूँ, ठीक है, कर देता हूँ, चलो लेट्स मूव ऑन, एक्चुअली लेट्स गेट बैक। बेटा हमें सवाल कह रहा था कि हमारे पास एक वेक्टर है 5 और रूट ऑफ y, इनके हमारे पास मैग्नीट्यूड 7 है। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैसे निकलता है, द जनरल फॉर्मूला इज x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर एंड यू गेट द मैग्नीट्यूड और द लेंथ ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। अच्छा सो इसका मैग्नीट्यूड या लेंथ वाज 7, सो आपने यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे x की वैल्यू 5 थी, तो यू प्लग इन 5 ओवर हियर, y की ये जो पूरा y था दैट वाज अंडर रूट ऑफ y फॉर दिस केस, सो अंडर रूट ऑफ y का स्क्वायर। आपने क्या किया बेटा, अंडर रूट ऑफ y और स्क्वायर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल ओनली बी लेफ्ट विद y, वेयर एज 5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है। सो 25 प्लस y इज इक्वल्स टू, अब हो गया, ठीक है, सो यू जस्ट सिंपलीफाई इट, सब्ट्रैक्ट कर लो, यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर विद दिस। चलो
अच्छा जरा इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को कहते हैं ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं जो सर्कल पर लाया करते हैं, सेंटर ओ है, डी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट ए, डी ई हमारे पास टेंजेंट है। हमें फाइंड करनी है वैल्यूज कौन कौन सी। अच्छा ये वैल्यू 35 है, ये 40 है, और हमें फाइंड करना है ए ओ सी विच इज गोइंग टू बी दिस ट्राइंगल। ए ओ सी में आपने फिगर आउट करना है ए ओ सी, सो दिस इज द एंगल विच एग्जामिनर इज कंसर्न्ड अबाउट। और ये एंगल कैसे निकलेगा, जल्दी से बताओ इसके लिए क्या करेंगे, 180 माइनस 35 एंड 35, गुड जॉब, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी 35, ये भी 35, सो बेटा 35 एंड 35 जब आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे आंसर आ जाएगा 70 एंड दिस इज गोइंग टू बी 110। ठीक है, अच्छा 110 कैसे आया, बिकॉज दिस वाज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सम इज 180, सो इफ दिस इज 35, दिस इज 35 व्हिच इज 70, सो 180 माइनस 70 आपके पास 110 आ जाएगा, यू विल बी एबल टू फाइंड AOC which is 110. Now after this part what are you going to do, you're supposed to find the angle. हाउ कैन वी बी श्योर, बिकॉज बेटा दो रेडियस है चंदा, ये देखो ये वाला रेडियस है, ये वाला रेडियस है। सो जब आपके पास सेंटर से दो रेडियस फॉर्म हो रहे होते हैं, सो इट इज ऑलवेज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी है सर्कल प्रॉपर्टीज में, एक सर्कल में जब एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ टू रेडियसेस, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी आइसोसेलेस नो मैटर व्हाट। ठीक है अच्छा कहता है फाइंड करो एंगल ए बी सी। बेटा ए बी सी कैसे निकलेगा, जरा इसको देखो, हमारे पास ए बी सी, हमारे पास ये वाला एंगल, गुड जॉब, ए बी सी इज दिस एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल एट द सेंटर वाली प्रॉपर्टी है। सो बेटा एंगल जो एट द हमारे सेंटर। पास, शाबाश, जो सेंटर पे एंगल होता है वो डबल होता है आपके पास, यहाँ पे ए बी सी उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, विच इज गोइंग टू 110 over 2 which is 55, so ABC is going to what, that is going to be 55. Now we're supposed to solve DAC, DAC कैसे होगा जरा ये देख लो बच्चों, this is DAC, DAC, this is the angle which you're supposed to find, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, फटाफट बता दो, वेरी इजी, 55 कौन सी होगा। प्रॉपर्टी लग रही है, 55 55, ऑर्डिनरी हाँ सेगमेंट ठीक है, थ्योरम। दोनों दोनों करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट हैं, गुड जॉब गुड जॉब, दोनों अप्रोचेस करेक्ट है। 55 डायरेक्ट कैसे निकाला, कैसे निकाला डायरेक्ट, यूजिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो बेटा आप डायरेक्ट ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी निकाल सकते हो। ठीक है, वेयर दिस एंगल 55 वुड बी सेम एज दिस, इफ नॉट देयर इज अनदर प्रॉपर्टी व्हिच दीस गाइस फिगर्ड आउट प्रॉपर्ली। हमारे पास सेंटर है, यहाँ से रेडियस फॉर्म हो रहा है, रेडियस और टेंजेंट इज सपोज्ड टू गिव अस 90, तो 90 माइनस 35 वुड आल्सो गिव मी 55, सो बोथ ऑफ द अप्रोचेस आर करेक्ट। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा, इसका भी 55 ही आएगा। नाउ वी आर सपोज्ड टू फाइंड व्हाट, OAB। OAB कैसे निकलेगा जरा देखो, OAB है क्या, OAB, अच्छा चलो ये वाला एंगल है, इसको भी दो तरीकों से कर सकते हैं। ओ ए बी कैसे निकालोगे, ओ ए एंड बी, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड ओ ए बी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। पहले 35 plus 40 plus 55 is equals to 180, 180 minus 35, जो आंसर आएगा उसे minus 35। ठीक है, बाकी किसी को समझ आया क्या कहा इन्होंने, देयर इज वन मोर वे विथ व्हिच वी कैन डू दिस, किसी को समझ नहीं आया, अच्छा देखो, अच्छा इन्होंने फरमाया कि बेटा ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सम क्या होगा, सारे एंगल्स का जो एक्सटर्नल एंगल्स होंगे वो 180 होंगे। क्या मैं कह सकता हूँ मुझे ये भी कंप्लीट सेट पता है, ये भी कंप्लीट सेट पता है, ये भी पता है, जहाँ पे दिस रीजन इज अननोन, सो कैन आई फाइंड दिस वैल्यू, यस और नो, गुड जॉब, दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर अब्दुल्ला नबी। सो अब दोनों तरीके मैं समझाता हूँ। ठीक है, अगर तो आपने थोड़ी सी क्वारी करनी है, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू वुड से दैट दिस इज अ ट्रायंगल एंड द सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। ठीक है, सो अगर ये 180 डिग्रीज है, सो आप क्या करोगे, 35 प्लस 40 ये वाला पार्ट हो गया, फिर आप कहोगे प्लस ऑफ 55 ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, प्लस आप कहोगे 35 प्लस एक्स, प्लस 35 प्लस एक्स, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर सपोज्ड टू बी 180 एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इजीली, जो कि ये आ रही होगी। बट अगर आपको याद हो हमारी क्लासेस में, इफ यू अटेंडेड सर्कल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्ली, सो देयर इज वन शॉर्टकट दैट आई टोल्ड यू फॉर दिस स्पेशल केस। ठीक है, अगर वो हम याद करें, सो क्या था वो जरा देख लो, इट्स नॉट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड, बट अगर कभी आ जाता है तो आपकी क्वारी काफी ज्यादा बच जाती है। एंड सर्कल प्रॉपर्टीज का कहाँ गया, सर्कल प्रॉपर्टीज में एंगल एट द सेंटर में हमने एक शॉर्टकट डिस्कस किया था कि जो ये दो छोटे से एंगल्स होते हैं, इन दोनों का सम डी और सी का हमेशा होगा इस एंगल एट द कॉर्ड के बराबर। ठीक है, सो इन दोनों का सम, if you add these values this would always give you this angle। ठीक है, so this is a shortcut, और इसकी हमने रीजन भी देखी थी कि क्यों ऐसा होता है, इन डिटेल हमने इसको डिस्कस किया था। सो कैन आई से मेरे पास एंगल एट द सेंटर है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, जहाँ पे ये वैल्यू और ये दोनों मिलाकर 55 होने चाहिए। so can I say 40 plus x is equals to 55 where we can find this out easily where it turns out to be 15। बात समझ आई, yes or no, जल्दी से बताओ। दोनों तरीके कर सकते हो, टाइम बचाना है तो ये करोगे, क्वारी करनी है, कैलकुलेशन में एरर करना है, सो यू माइट गो फॉर दैट अप्रोच। ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट, आंसर दोनों से करेक्ट आएगा।
चलो फंक्शंस ट्राई करते हैं। फंक्शंस में आई बिलीव गाइस दीज आर वेरी इजी। टाइम वेस्ट करना है, जल्दी बता दो, स्किप कर दें इसको। फंक्शंस आई बिलीव दीज पार्ट बी। चलो पार्ट बी बेटा क्या कहता है, फंक्शन इसको सॉल्व करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। सो दिस इज y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। 3 स्टेप प्रोसेस सीखा था हमने, रिप्लेस सब्जेक्ट रिप्लेस। बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, y प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 3x, और बेटा x को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो x वुड बी व्हाट, y प्लस 4 ओवर 3। रिप्लेस अगेन f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 4 ओवर 3। right now if you want to do fg of x find करना है, so major function या first function क्या होगा, that is going to be f क्या कहता है हमें, f कहता है it's supposed to be 3x minus 4, so f of x is what बच्चे, f of x is going to be 3x minus of 4। अच्छा अब इसके अंदर हमने क्या plug in करना है, we have to plug in g inside of f। now what was function g was 4x plus 1। ठीक है, फंक्शन g क्या है, वो 4x plus 1 है। सो हम क्या करेंगे, f g of x wherever we have x we'll apply a bracket and inside of it we are going to plug in g which was what, which was 4x plus 1। ठीक है, 4x plus 1 जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, you open it, when you open it this will become 12x प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4, ये क्या हो जाएगा 12x माइनस 1। सो ये हमारे पास ax प्लस b के फॉर्म में आया। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a, कैन वी से द वैल्यू ऑफ a इज 12 एंड द वैल्यू ऑफ b इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी माइनस 1। so 12 and minus 1। part d is easy as well, कहते हैं 2 over fx and 5 over gx को सॉल्व करो। बेटा 2 over fx क्या है, 2 over 3x minus 4। so this is going to be 2 over function of x which is 3x minus of 4 minus 5 over gx। बेटा gx की वैल्यू क्या थी, gx की वैल्यू is 4x plus 1। ठीक है, सो मुझे बताएं कैन वी नॉट सॉल्व दिस इजीली। अभी आसान नहीं बन गया, जल्दी से बताओ, अब ये कर सकते हैं, कैन वी सॉल्व Yes, दिस sir. नाउ। सिंगल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, जस्ट मेक श्योर यू मल्टीप्लाई दीज आपस में एंड देन दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस एंड दिस, राइट। सो प्रीटी इजी, मेक श्योर यू राइट इट एज इट इज। एंड डिनोमिनेटर में आई वुड सजेस्ट कि आप आंसर फ्रैक्टर्स में ब्रैकेट्स में ही लिखो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऊपर वाले किसी फैक्टर के साथ कोई एक वैल्यू कैंसिल हो जा रही होती है। अगर नहीं भी हो रही तो इट्स फाइन, लीव इट एज इट इज, डोंट एक्सपैंड इन द डिनोमिनेटर। Now when we do this question expand and simplify sets का, ये चलो मैं एक बार करा देता हूँ। Now we know that this 2 is supposed to be multiplied with 1 and this 2 is supposed to be multiplied with this as well. So 2 times 1 that gives us 2 and 2 times of that would give us what, minus 6 root of 5। Any problem with this part? जल्दी से बता दो। No, sir. ठीक है, now that we're done with this, so minus 1 times of root of 5 would be what, minus root of 5 and then इस part को जरा समझो, minus 5 ये क्या हो जाएगा, कौन इसका आंसर बताएगा जल्दी से, क्या होगा इस पार्ट का, दिस इज माइनस 5. मल्टीप्लाइड विथ माइनस ऑफ 3 रूट ऑफ 5। ठीक है, सो व्हाट वी नो इज, नो क्या मैं कह सकता हूँ इस पार्ट को और इस पार्ट को जब मैं सॉल्व करूंगा, क्या समझ नहीं आया, इस पार्ट को और इस पार्ट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इस पार्ट का आंसर क्या आएगा, इस पार्ट का आंसर आएगा सिर्फ 5, बट दिस वाज सपोज्ड टू बी मल्टीप्लाइड विद 3 एज वेल। ठीक है, माइनस माइनस पहले ही कैंसिल हो चुका था, सो 5 टाइम्स 3 दैट गिव्स अस व्हाट, दैट गिव्स अस 15। मल्टीप्लिकेशन ये वाली ना बेटा, नॉर्मल उसकी तरह सॉल्व करो, अलजेब्रा की तरह। आपके पास जैसे a प्लस बी एंड चलो c प्लस d है, क्या करते हो, you multiply this with this and you multiply this with this, you multiply this with this and this with this, right। so आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, आंसर आया 2। फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 रूट ऑफ 5 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 6 रूट ऑफ 5। ठीक है, फिर आप रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 करोगे, सो माइनस रूट ऑफ 5 एंड माइनस 5 और 3 रूट ऑफ 5। नाउ दिस इज, you might be facing difficulty in this part and if that's the case, जरा इस बात को समझो कि अगर माइनस हम माइनस मल्टीप्लाई होंगे, पहले तो ये बात समझो, आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फिर अब हमने मल्टीप्लाई करना है 3 रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड ऑफ 5। चलो मैंने रीअरेंज कर लिया, अब और काम आसान हो जाएगा। कैन आई से दिस वैल्यू टुगेदर वुड गिव अस व्हाट, this value together would give us 5, right, and this 5 was 5. supposed to be multiplied with 3 as well, so the answer is going to be what, that is going to be plus of 15। so अब क्या हो जाएगा, 2 plus of 15 that gives us 17। wait, a minus 6 minus nothing written here, that means it's 1, so can I say that is going to be minus 7 root of 5। is this clear, yes or no? जल्दी से बताओ, any problem so far, फटाफट बताओ, कोई मसला है यहाँ पे, एनी डिफिकल्टी? ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस इट आगे।
अच्छा, सो अब रैशनलाइजेशन, दिस इज वेरी इजी। सिंगल डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लो, डिवाइड भी कर लो, यू डोंट नीड टू यूज ऑपोजिट साइंस। सो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 6 रूट ऑफ 10, नीचे क्या हो जाएगा रूट 10 एंड रूट 10 सिंप्लीफाइड, दैट विल गिव अस 10। यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर वेयर दिस कैन बी सिंप्लीफाइड फ्रॉम द टेबल ऑफ 3, no, table of 2, so which will give us 3 over 5 of root 10. ठीक है, so 3 root 10 over 5 is going to be the answer for this case. Acha, for these expansions where there are 3 brackets to be simplified or multiplied, I always suggest कि बेटा आखिरी 2 brackets को पहले solve कर लो, काम थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। So when we do that, it will be x plus 4 simplified with the last 2 brackets, so x and 3x multiply होके क्या हो जाएगा 3x square। बेटा x एंड 2 क्या हो जाएगा, स्किप कर दें इसको, इजाजत है, स्किप स्किप। चलो, जस्ट मेक श्योर यू सॉल्व दीज पार्ट्स फर्स्ट, एंड जो आंसर आएगा उसको आपने इसके साथ एक्सपैंड करना है, ठीक है। प्रॉपर अलजेब्रा ग्रेड 6-7 में पढ़ते आ रहे हैं। नाउ आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन। इसके इंडाइसेस देख लें कैसे होगा। 27, आई थिंक हमने एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन कल ही किया। सो हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपने रेसिप्रोकेट किया 1/27 पावर 2/3, ठीक है। जब पावर 2/3 करेंगे क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू 1/27 टाइम्स ऑफ 1/3 टाइम्स ऑफ 2, सो इसकी वजह से स्क्वायर रूट होगा, क्यूब रूट होगा, सो दिस वुड बी 1/27 with a cube root, and that would give us what, that would give us 1/3, and 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, that is supposed to be 1/9, ठीक है। चलो, ये IGCSE के लिए था। इसके बाद आगे चलते हैं। Simplify. What about this? करना है, skip करें? Very easy. Want to do it or skip? Skip, इजाजत है। चलो, now that we're done with first attempt, अब हम जरा word problems पे और थोड़े से lengthy questions या tricky questions की तरफ जा रहे होंगे। So here we go. ठीक है, so आपने जब भी पेपर attempt करना है इसी अप्रोच के साथ करना है, so that you have more time to do less number of questions, ठीक है। because आपने काफी सारे questions काफी कम टाइम में कर लिए होते हैं, so you already have ample amount of time to solve, complete the whole paper and review your paper as well, ठीक है। so हमें कह रहे हैं Sally invest $1,500 at 3% सिंपल इंटरेस्ट की कंडीशन पर, ठीक है। वर्क आउट द टोटल वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले मुझे पता है एग्जामिनर डिमांड क्या कर रहा है, व्हाट डज ही वांट अस टू फाइंड, क्या फाइंड करवाना चाह रहा है, ही वांट्स अस टू फाइंड अमाउंट टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट फाइंड करनी है बेटा। टोटल अमाउंट फॉर द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगी, कौन बताएगा? PRT over 100 plus P. वेट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। चलो, हाँ सॉरी। सो टोटल अमाउंट हमने कहा हमने फाइंड करना, बट कंडीशन क्या है, पीआरटी ओवर 100 की, राइट। सो पीआरटी ओवर 100 से हमारे पास फाइंड क्या होता है, शाबाश, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। सो बेटा हमारे पास ये समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है में आप कैलकुलेट करते हो पी आर टी ओवर 100 से, क्या, फ्रॉम पी आर टी ओवर 100 यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। आप इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होते हो, बट अगर आपको टोटल अमाउंट चाहिए, सो टोटल अमाउंट के लिए डू ए प्लस आई, पी प्लस आई, ठीक है। सो पहले हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास 1500 times of rate which is 3 times of multiplied by time which is 6 over 100, ठीक है। so we know 0 0 0 0 cancel, so 15 times of 3 that gives us 45, and 40 times of 45 times of 6 क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे, 6 5 30 0 3, ठीक है। चलो 270 आ गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मेरे पास इंटरेस्ट आया, बट एग्जामिनर ने हमसे अमाउंट पूछा था, और अमाउंट के लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला समझा हुआ है, एक्सप्रेशन समझा हुआ है, which is A is equals to P plus I, ठीक है। so it's going to be 1500, good job guys, 1500 plus 270 that gives us 1770 for 3 marks, free 3 marks, ठीक है। चलो, फिर कहते हैं the interior angle of a regular polygon is 150 degrees. Keep in mind this is a regular polygon and we are supposed to calculate a single interior angle, and the formula is going to be what? The formula is going to be, जल्दी से बता दो क्या है formula, what's the formula? -2 into 180 over 2 over n. ठीक है, शाबाश। सिंगल एंगल के लिए सपोज टू बी n minus 2 into 180 over n which is equivalent to 150 degrees, where
this n will be multiplied on that side और ये values इन दोनों के साथ multiply हो जाएंगे. This is going to 180n minus of 360 is equivalent to 150n. बेटा ये दोनों subtract हो जाएंगे उस side पर जाके, ठीक है. So this would give us what? This would give us 30n is equals to 360 और n की वैल्यू हो जाएगी 360 over 30, 0 0 cancel, 36 over 3 that gives us what? That gives us 12. ठीक है, चलो. Now let's solve question number 6. Question number 6 is interesting. Why is that? So जरा इसको देखते हैं. हमें कहता है the line x plus y is equals to 7. ठीक है, is drawn on the grid. ये already drawn है. कौन सी है? Let's just name it equation 1. Equation 1 is already drawn for us. फिर कहता है on the grid draw the line of y is equals to 2x plus 1. Let's count this to be our equation 2, which is y is equals to 2x plus 1. Now I know that since this seems to be ये कैसी line है? This is a straight line. How do I know? Because if I compare it with y is equals to mx plus c, yeah, so we know हमारे पास c की वैल्यू क्या आएगी? c की वैल्यू is 1, which means my y intercept is 1 on the graph. ठीक है, अब हमें प्लॉट करना है तो प्लॉट कैसे करेंगे? व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? प्लॉट कैसे करेंगे? राइज ओवर रन, 2 राइज और फिर 1 रन. हाँ, सो गाइस अज्यूम कर सकते Assume हैं, x value. assume x values कर सकते हैं. या what Fatma I believe is saying is कि because ये gradient is 2, so that means 2 और 1, y पे आप 2 जाओगे और x पे 1 जाओगे. ठीक है, that is correct as well, but just keep it simple. अगर क्योंकि हमने नहीं पढ़ा हुआ पहले कभी इस अप्रोच से, so what you can do is you can directly assume values, and when you assume values, कोई सी भी value assume कर लो. Let's just say let's assume 3. So when I assume 3, this will be y is equals to 2 times of 3 plus of 1. तो बेटा y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू will be 7 for the value of x to be 3. So we would say 3 times 7, it's going to be somewhere here, this coordinate, and I'm going to join this line. ठीक है, हम इस line को join कर लेंगे something like this. ठीक है, अच्छा अब जरा नेक्स्ट पार्ट को पढ़िएगा, मुझे बताइएगा क्या हम ऐसा कभी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं पहले? कहता है यूज योर ग्राफ टू सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस. और बेटा साइमल्टेनियस को ग्राफ से सॉल्व करने कभी डिस्कस किया हमने पहले? डिड वी एवर डिस्कस दिस इन द पास्ट? नहीं किया? चलो भाई, सारी मेहनत गई पानी में. How are we able to assume? Sir, pick any values, Isha, pick any value from the graph, any value of x. आप कोई भी value of x select करोगे so आपका उसके corresponding y मिल जाएगा, because you know that for that two your corresponding y value is 7, so you know ये line पर ये coordinate इस line पर exist कर रहा होगा. एक coordinate हमें पहले पता था, एक और हमने assume करके निकाल दिया, and you plot this line. ठीक है, अच्छा शजीन क्या पढ़ा था? अगर if you say yes, so what did we study about this? Do you remember? इक्वेट बेटा ग्राफ से करना है, ग्राफ से करना सर है. वो पॉइंट जहाँ पे दोनों ग्राफ्स लाइक दोनों ग्राफ्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. हाँ, what do we mean by satisfy? There is one important word that we can use, intersection. ठीक है, good job, गुड जॉब. सो हेबा, अभी जो आपने पूरी मेहनत पानी में डाली है, जरा ये देखो बच्चे, जो हमने यहाँ पे सबसे लास्ट टाइप किया था कि देयर इज वन थर्ड केस वेयर यू से द ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ठीक है, so you plot two lines and their point of intersection is supposed to be your value for x and y. नहीं किया था ये? जल्दी बता दो, नहीं पढ़ा? ग्राफिकल मेथड से अगर करते हैं हम तो हमारे पास रेंज वेट नहीं आता ही नहीं है आपको. ठीक है, सो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास इंटरसेक्शन, क्योंकि हम दोनों लाइंस को ड्रॉ कर चुके हैं 1 and 2, सो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस इज गोइंग टू बी माय वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई. हमने 3 मेथड सीखे हैं. फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन, सेकंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन, एंड द थर्ड इज ग्राफिकल. ग्राफिकल से एग्जामिनर काफी रेयरली टेस्ट करता है, बट कर लेता है तो फिर ऐसे हालात होते हैं जैसे अभी आपके. सो ये क्या हो गया? दिस इज गोइंग टू बी 2 and 5. कैसे 2 and 5 बेटा? द वैल्यू फॉर एक्स इज 2 ऑफ दिस इंटरसेक्शन पॉइंट एंड द वैल्यू फॉर वाई इज 5. ठीक है, this is what we're going to do. Is this clear? Any difficulty with this part? कोई difficulty? Any difficulty so far? All good? चलो आगे बढ़ते हैं. प्लीज रिपीट. अच्छा देखो शिमशाल बच्चे, हमें ये बात समझनी है कि हमारे पास साइमल्टेनियस के 3 मेथड है. कितने मेथड है? 3 मेथड फॉर साइमल्टेनियस. ठीक है, पहला मेथड है एलिमिनेशन. आई एम श्योर यू नो दैट. सेकंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन. आई एम श्योर यू वुड बी नोइंग दैट एज वेल. ठीक है, एक तीसरा मेथड है विच इज व्हाट? विच इज ग्राफिकल मेथड.
ठीक है। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, अब देखो इस पे ग्राफिकल लगाना जरूरी क्यों, इफ यू डू एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फॉर 1 मार्क, ठीक है, यू कांट वेस्ट टाइम, एंड द सेकंड रीजन इज एग्जामिनर हैज टोल्ड यू टू यूज योर ग्राफ। अगर आपने इस क्वेश्चन में गलती से भी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन यूज किया तो नंबर नहीं मिलेगा, फर्स्ट आपने ये बात समझनी है, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि इफ देयर आर टू लाइंस या दो इक्वेशंस बेटा, सो जो जहां पे वो दोनों लाइंस मीट करेंगे, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो जहां पे वो मीट करेंगी दैट इज योर सोल्यूशन और आंसर टू योर साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। जिस पॉइंट पर दो इक्वेशंस मीट करेंगे, ये दो इक्वेशंस कहाँ पे मीट कर रही थी, दीज टू इक्वेशंस यू हैव ड्रॉन दीज ऑलरेडी, ठीक है, बिकॉज ये वन आपके पास ये थी जो एग्जामिनर ने बना के दी थी और ये टू आपने खुद से भी अज्यूम करके बनाई। तो जहां पे ये दोनों लाइंस, ये दोनों इक्वेशंस मीट करेंगी, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इज गोइंग टू बी योर इंटरसेक्शन पॉइंट एंड योर आंसर टू योर साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सो ये मेथड आपको आना चाहिए, एंड एक्स की वैल्यू आप रीड कर लोगे, वाई की वैल्यू भी रीड कर लोगे, ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं राइट डाउन द रिकरिंग डेसिमल 0.26 वेयर 6 इज रिकरिंग एंड राइट इट एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, रिकरिंग डेसिमल के लिए वी लर्न दैट दिस इज सपोज्ड टू बी x इज इक्वल टू 0.26। रिपीटिंग पैटर्न, बास्केट कहाँ पे अप्लाई करोगे, अंडरनीथ ऑफ 6 and 2, यू मल्टीप्लाई इट विथ व्हाट, डेसिमल से एक दूर और 2 यूनिट्स दूर। तो हमने क्या सीखा, 1 डेसिमल प्लेस के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फटाफट बताओ, और 2 से किसके, 2 के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 and 100, ठीक है, 10 and 100। सो बेटा जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 100x इज इक्वल्स टू 26.6, और जब आप 6 से करोगे तो क्या, 10 से करोगे तो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 10x इज इक्वल्स टू 2.6। बेटा दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लो, 6 और 6 कैंसिल, 26 minus 6 gives us 24, 100 minus 10 gives us 90x, ठीक है। सो 90x is equals to 24, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू is supposed to be 24 over 90, simplify it, हाफ कर लो 2 से, so this will give us 12 over 45, मजीद 3 से हो जाएगा, so 3 4s are and 3 15s are, so 4 over 15 is the answer for this part, ठीक है। चलो, अच्छा, the table shows some information about marks scored by a group of students in a test. कुछ data given है, 1 before decimal and 1 after decimal. What do you mean? What do you mean? हमने बेसिकली जो रिपीटिंग पैटर्न होता है ना, उसके नीचे बास्केट लगानी है, ठीक है, उसके नीचे बास्केट लगाई, एंड नाउ वी नीड टू चेक वेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बास्केट, इट्स 1 decimal place from the starting point of this basket, and then the ending point is 2 decimal places away. So that is what we're doing. Recurring decimal के video lectures uploaded होंगे, just go through it. So 1 decimal place के लिए we've said we're supposed to multiply with 10, 2 decimal place के लिए we're supposed to multiply with 100, and 0 decimal place के लिए we have said कि multiplied with the number 1 itself, मतलब keep the equation same, no changes in that equation, ठीक है। चलो, the table shows some information about the marks scored by a group of students in a test. The mean mark is 6, mean हमारे पास 6 है, work out the value of n। बेटा फॉर्मूला क्या है मीन का, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, we might have not done this in past papers yet। कैसे फाइंड करना है इसका, डिस्क्रीट डेटा, ग्रुप डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है, कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करके टेस्ट मार्क को फ्रीक्वेंसी से। हाँ, फॉर्मूला क्या था, समेशन fx ओवर समेशन ऑफ f, what is the fx value बेटा, ये x as it is है, ये f as it is है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, so you'll get a value known as fx which is going to be 8, 20 and 8n. So in the numerator you're supposed to add these values, which is going to be what, 8 plus 20 plus 8n divided by sum of frequencies। given है क्या sum of frequencies, हमें बताओ, इस बार दी है एग्जामिनर ने, वैसे तो दे देता है, इस बार दी नहीं है No. नो। सो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे sum of frequencies, what is going to be Mean the mark sum? is less. 2%. we add all of these we add all of these values, these are my sum of frequencies, ठीक है। so sum of frequencies क्या हो जाएंगी, ये मेरे पास हो जाएंगी 2 plus 4 which is 6 and 6 plus n as the sum, और इन सब का मीन क्या था मेरे पास, what is the mean 6. for this, it's going to be 6, good job। so 6 plus n, and all of this is supposed to be equals to 6। now I'm sure you're smart enough to figure it out, this is going to be 28 plus 8n is equals to 6 times of 6 plus n, ये पूरी चीज को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, and you will be able to find the value for n। कर लोगे इससे आगे, ठीक है। चलो,
Beta, sum of frequencies, summation of fx. Beta, you add all of these values over here. Sum of fx आपके पास आ जाएगा 28 plus 8n, and you add all of the frequencies over here. Sum of f. Beta, sum of f क्या हो जाएगा 2 plus 4, which is 6 plus n. ठीक है, क्लियर? चलो, अच्छा, इसके बाद क्या होगा? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, जरा इसको देखो क्या कहता है, पढ़ो और मुझे कौन बताएगा कैसे करेंगे। जल्दी से पढ़ लो इसको। कहते हैं द डायग्राम शोज द ग्राफ y इज इक्वल्स टू, पढ़ लो क्या कहता है सवाल जब तक मैं इसको कर लूँ सॉर्ट। हाँ, so the question says the diagram shows the graph of y is equals to f of x and the point minus 2 and 11. Here is the point minus 2 and 11 which is drawn for you, point P. ठीक है, फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है the tangent from P. So a line, the tangent P line is supposed to be drawn from P, and इसके बाद क्या है? it touches the graph y is equals to f of x at point a and b. So point a and b पे कहीं टच कर रहा है, I'm not sure कहाँ पे. By drawing this tangent find the values of a and b. So बेटा कैसे बनेगा tangent, बताओ बच्चे? How are you supposed to draw this tangent? क्या करना है इसके लिए, जल्दी से बताओ, क्या करोगे? What will you do? जल्दी से बताओ, I'm waiting स्ट्रेट लाइन guys. ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे? चलो, आई हैव अ रूलर, गाइड में। ठीक है, अब क्या करना है बताओ? स्ट्रेट रूलर है, अब क्या करें इसको? कैसे ड्रॉ करनी है लाइन को? -2 and 11 रख लिया, -2 11 पे। अब बाय पासिंग फ्रॉम P, इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? सो आप लोग कुछ यूं कह रहे हो, इस तरीके से इसको मजीद रोटेट करूं, इज दैट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू? जल्दी से बताओ। सर उसको रोटेट करेंगे जब तक वो कर्व के करीब नहीं आ जाता, लेकिन कर्व को टच करना चाहिए। लाइक दिस, प्रोबेबली। ठीक है, गुड जॉब, गुड जॉब। ठीक है, सो आपने लाइन को पास कराना है P से, और वो लाइन पे इस कर्व पे स्लाइटली टच होना चाहिए। नाउ मैं इसको एग्जैक्टली इसके ऊपर क्यों नहीं रख रहा गाइस? अगर मैं इसको एग्जैक्टली इसके ऊपर रखूंगा, सो इवन व्हेन यू डू इट इन रियल लाइफ ना, यू शुड बी एबल टू हैंडल इट प्रॉपर्ली। व्हाई? अगर मैं ड्रॉ करूंगा सो आप देखोगे शायद मेरे पास यहाँ पे 2 जगह या 3 जगह पे काफी हैवी जगह पे टच कर रहा है, राइट? तो मेक श्योर व्हेनेवर यू ड्राइंग लाइंस, तो थोड़ा सा बहुत माइनर सा गैप रखो, सो दैट यू आर एबल टू हैंडल दिस प्रॉपर्ली। तो थोड़ा सा गैप रखो एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट अ टेंजेंट। ठीक है, सो या और इसको करीब कर लेता है, आई थिंक अभी भी इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट, इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट, थोड़ा सा और कर लेते हैं, लेट्स जस्ट से somewhere maybe here. ठीक है, somewhere here, so this should be a better line to draw. ठीक है, सो मुझे बताओ टेंजेंट कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? कैन वी से कि हमारे टेंजेंट इस पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है, यस और नो? डू वी एग्री? ठीक है, यस। तो टेंजेंट हो गया। अब क्या करना है इसके? आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। एक एक्स आपके पास ए था, सो व्हाट इज माय एक्स कोऑर्डिनेट? कैन आई से दैट इज सपोज्ड टू बी 1, एंड इसका कोरिस्पोंडिंग वाई कोऑर्डिनेट क्या है? मेरे पास ये 5 था, द इंटरवल साइज वाज 5 एंड देयर वर 10 बॉक्सेस। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? क्या करेंगे? 5/10, so 5/10 each box is 0.5, so beta 4 times of 0.5, that these are 2 units. ठीक है, so this is going to be 1,2. any difficulty with this? जल्दी से बताओ, कोई मसला है यहाँ पे? any difficulty with this part? ठीक है, चलो इसके बाद क्या कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। बेटा इसी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? कैसी लाइन है ये? किस फॉर्मेट में लिखी जाएगी ये? y is equals to mx plus c। Negative 1 into mx plus mx c. plus c। बेटा मुझे बताओ इसका ग्रेडियंट कैसे फाइंड करोगे? फॉर्मूला लगा के y2 minus y1 over x2 गुड minus जॉब, x1। गुड जॉब। डू वी हैव 2 पॉइंट्स ऑलरेडी? क्या इस पॉइंट पे दो, इस लाइन पे 2 पॉइंट्स गिवन है? गिवन है तो दूसरा फिर नहीं निकालो पॉइंट कहीं। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट गिवन थे? P भी गिवन था which was -2 and 11। गुड जॉब, तो -2 and 11 गिवन है, और दूसरा कौन सा गिवन है? The other we just found out which is 1 and 2. So if you already have coordinates, don't waste your time by finding other coordinates. Just make sure these points lie on the line, and yes, both of these points were on this line, so hence these should be correct. ठीक है, so y2 minus y1 कर लो। 11 minus 2, that gives me what? That gives me 9. -2 minus 1 would give me what? -2 minus 1 would be -3. So 9 over -3, that gives me the gradient as -3. ठीक है, so मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? y is equals to -3x plus of c। c कैसे निकलेगा?
कैसे निकालते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देंगे कोई कोऑर्डिनेट। सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक और तरीके से कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू? 5। 5। मैं समझाता हूँ 5 पार्ट। 5, गुड जॉब बेटा, टाइम जाया नहीं करो, फटाफट आप देखो y इंटरसेप्ट क्या है, ग्राफ गिवन है, सो ग्राफ से हमने डायरेक्टली समझा था c या 5 पढ़ सकते हो, सो दिस इज गोइंग टू y इज इक्वल्स टू y इज व्हाट, y इज इक्वल्स टू -3x प्लस ऑफ 5। पहले बताओ इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम? पार्ट बी क्लियर है, ताकि मैं पार्ट ए समझा दूं दोबारा से। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, चलो पार्ट ए में क्या था शिमशाल बच्चे, देखो जरा, हमें फाइंड करना है क्या, हमें एग्जामिनर क्या कह रहा है बाय द टेंजेंट फ्रॉम P टचेस द ग्राफ एट y इज इक्वल्स टू ऑफ द ग्राफ, द टेंजेंट फ्रॉम P टचेस द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू f(x). बेटा ये मेरे पास ग्राफ है y इज इक्वल्स टू f(x) का, जो एग्जामिनर ने बना के दिया हुआ कर्व, ठीक है। करेक्ट, टेंजेंट फ्रॉम P मतलब देयर इज अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन जो कि टेंजेंट है वो P से पास कर रही है। फ्रॉम P का ये मतलब है कि दिस टेंजेंट इज सपोज टू पास फ्रॉम P नो मैटर व्हाट, ठीक है। एंड इट इज सपोज टू व्हाट, इट इज सपोज टू intersect or touch, the tangent would touch where, it would touch A and B। सबसे पहले तो हमें tangent समझना होता क्या है बेटा। tangent is any straight line that touches the curve slightly, just one point पे, either a curve or a circle। या तो सर्कल को बाहर से हल्का सा टच करते हुए जाएगा, या वो किसी कर्व को हल्का सा टच करते हुए जाएगा। दिस इज अ टेंजेंट। आपने क्या किया, आपने स्केल लिया, आपने क्या किया, यू टुक आउट योर स्केल, ठीक है। आपने अब इस स्केल के साथ खेलना है, आपने इस स्केल को P पर रखना है, नो मैटर व्हाट, इट शुड ऑलवेज बी पासिंग फ्रॉम P। नाउ इमेजिन if I draw a line like this, मुझे बताओ is it touching the curve or is it intersecting the curve? What's happening? जल्दी से बताओ, touching or intersecting? Intersecting। So क्या ये tangent होगा? So the answer is no, it's not a tangent। Now you're going to play with your scale while keeping your scale at point P। दोबारा थोड़ा rotate करो। Now can I say if I draw a line like this again, so अब मुझे बताओ is it still passing from P? Yes, it's passing from P, but is it intersecting or is it touching? It's still intersecting at two places। This is not a tangent, but your tangent is only supposed to pass from one line। So you're going to play with your scale until unless you find such a point जो कि इसको स्लाइटली कर्व को बाहर से हल्का सा टच करते हुए गुजर जाएगा, एंड विच इज गोइंग टू बी दिस लाइन, ठीक है। नाउ दैट यू ड्रॉन दिस लाइन, हमें बताना था कि टेंजेंट कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं ऑन दिस ग्राफ, सो इट वाज दिस कोऑर्डिनेट व्हिच वाज 1 and 2। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, क्लियर। चलो अच्छा जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट सेज the time spent on the internet by each of 120 adults is recorded for one day। The cumulative frequency diagram shows this information। Use the cumulative frequency diagram to find an estimate of the interquartile range, ठीक है। तो बेटा interquartile range हमारे पास कैसे निकलता है फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? वी हैव सेड दैट इंटरक्वार्टाइल इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपर क्वार्टाइल माइनस ऑफ लोअर क्वार्टाइल, वेयर अपर क्वार्टाइल इज 75% एंड लोअर क्वार्टाइल इज 25%, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दिस इज गोइंग टू बी 3n/4 एंड दिस इज गोइंग टू बी n/4, ठीक है। अच्छा, व्हाट वाज द मैक्सिमम ऑफ द टोटल डेटा दैट वी हैड? इट वाज सपोज्ड टू बी 120, ठीक है, ये 120 था हमारे पास as we can see। So now we are going to find 3/4 of it। So बेटा 3/4 of 120 is going to be what? That is going to be 90। ये हमारे पास लोअर क्वार्टाइल के y एक्सिस की वैल्यू है which is going to be somewhere here, ठीक है। अब मैंने सेम लोअर क्वार्टाइल के लिए करना है बेटा। लोअर क्वार्टाइल के लिए इट्स गोइंग टू बी n/4 which is going to be 120/4 which gives me 30, और वो मेरे पास कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। बट कीप इन माइंड फॉर इंटर क्वार्टाइल आई एम नॉट सपोज्ड टू डू 90 - 30, दैट्स नॉट द करेक्ट वे। What am I supposed to do? Instead, I'll find out their corresponding values of x for these values, ठीक है। इन्हीं की मैं corresponding values of x निकालूंगा जो कि कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, 90 पर, और वो वैल्यू हम रीड कर लेंगे। नो, दैट इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू डू शिमशाल। वी आर नॉट गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दीस डायरेक्टली। हम इनकी एक्स वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम इनकी एक्स वैल्यूज फाइंड करेंगे पहले ग्राफ से, और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमारे पास इंटरक्वार्टाइल होगा, ठीक है। सो दिस वुड बी, जल्दी से रीड कर लो, व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज 5.6 एंड 4.2 आई बिलीव, ठीक है। सो क्या वैल्यूज आएंगी, आप फटाफट इनको रीड कर लोगे। ये मेरे पास आएगी 5.6, दिस इज व्हाट 5.6 एंड 4.2। आई सब्ट्रैक्ट दीस वैल्यूज, और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, हम निकाल लेंगे 5.6 - 4.2 एंड द आंसर इज 1.4 फॉर दिस पार्ट। गुड जॉब, ठीक है। फिर कहते हैं 70% ऑफ द अडल्ट्स
spent less than k hours on the internet. बच्चे less than कह रहा है, पहले तो ये समझो, और 70% of the adults कह रहा है. तो बेटा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ adults कौन से थे, यहाँ पे hours given है, so मेरे पास जो frequency है count of adults होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा, and the total was supposed to be 120. so हम इसका 70% फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे. so 70% मेरे पास आएगा, it's going to be 70 over 100 times of 120. Are you guys speaking by any chance? I don't hear a single word. 7 times 12 would be 70 and 14 84. ठीक है, so हमने 84 की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द ग्राफ. so 84 will be drawn somewhere here I believe. ठीक है, तो 84 पे हम ड्रॉ कर लेंगे मार्क. हमने आवर्स बताने थे. सो दिस इज द वैल्यू. ठीक है, ये हमारे पास 70% 84 वैल्यू पे कितनी आएगी, दिस इज समवेयर अराउंड थोड़ा सा और, इट्स ऑन द राइट. ठीक है, somewhere here. So this is what 5.4. So this value turns out to be 5.4 for this case. ठीक है, 5.4. बट आपने ये समझना है कि क्या कह रहा था, लेस देन कह रहा था. सो ये वैल्यू आपके पास k थी, और लेस देन का मतलब क्या है, इट मींस द डेटा रिप्रेजेंटेड बाय दिस रीजन, व्हिच मींस यू आर गोइंग टू रीड दिस एज इट इज. बट अगर ये मोर का पूछता तो बेटा मोर वाला आपके पास ये डेटा हो रहा होता, सो यू माइट हैव सब्ट्रैक्टेड दीज वैल्यूज. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन विद दिस कांसेप्ट. ठीक है, क्वेश्चन 13 को देखो. Question 13 कह रहा है solid A. The diagram A shows solid A and B. Solid A is made from hemisphere and a cone each with radius 6. तो बेटा ये hemisphere और cone से बन रहा है जिसका radius 6 है. फिर कहता है solid B is a cylinder with radius 4 and the height to be h. कहता है the total surface area of solid A is equal to the total surface area of solid B. Work out the value of h. तो हमें कह रहा है इसका total surface area is equivalent to इसका total surface area. तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि सॉलिड ए में मेरे पास सर्फेसेस कितनी एग्जिस्ट करेंगी, जल्दी से बता दो. हाउ मेनी सर्फेसेस एम आई गोइंग टू हैव, कौन कौन सी. कैन आई से गोइंग टू बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरा क्या होगा, द सेकंड इज गोइंग टू बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कैसे निकलता है बेटा, फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला गिवन है, दैट इज गोइंग टू बी पाई आर ऑफ एल. फिर बेटा आपके पास फॉर्मूला शीट में गिवन है फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. ये किसका गिवन है बेटा, स्फीयर का गिवन है. तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का इट विल बी, हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 2 पाई आर स्क्वायर. शाबाश, ठीक है. नाउ दिस इज सपोज्ड टू बी इक्विवेलेंट टू द एरिया ऑफ दिस कोन, दिस क्या कहते हैं, एरिया ऑफ दिस सिलेंडर. तो मुझे बताओ सिलेंडर में कितनी सरफेसेस हैं, हाउ मेनी सरफेसेस डू वी हैव फॉर अ सिलेंडर बच्चे, दैट इज 3. ठीक है, गुड जॉब. 3 कैसे होंगी, जरा इस पार्ट को समझो. हमारे पास एक टॉप सर्कल है, एक बॉटम सर्कल है, एंड देन वी हैव अ कर्व सरफेस. ठीक है, सो टॉप एंड बॉटम सर्कल आर पाई आर स्क्वायर, एंड ये 2 बार होंगे, सो वी से दीज आर गोइंग टू बी 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर plus of the curved surface area of cylinder, which is what, 2 pi r h. शाबाश, 2 pi r h. ठीक है, so radius for cone and hemisphere is what बेटा, first solid A के लिए radius was 6, so आपने plug in किया pi of 6. L क्या होगा, जल्दी से बता दो, what is going to be L for this case, what is L, 10. 10. L क्या होता है हमारे पास बेटा, कोन में L इज द स्लांटेड लेंथ ऑफ दिस साइड व्हिच इज 10. गुड जॉब, आपने 10 प्लग इन कर लिया. अब आपको अगर ये सिलेंडर को सॉल्व करना है तो सिलेंडर का रेडियस यहाँ पे गिवन था, मैंने मिटा दिया, व्हिच इज व्हाट, व्हिच इज 4. ठीक है, सो यू यूज 4 फॉर द सेकंड केस, पाई आर 2 टाइम्स 2 pi 4 square plus of 2 pi 4 and h is unknown. Solve कर लो, h की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, so this is going to be 60 pi plus of 36. 36 times 2 is 72, so this is 72 pi is equals to 4 square is 16. 16 times 2 is what, that is 32 pi plus of 4 2s are, which is 8 pi h. ठीक है, अब आप ये समझो कि 60 plus 72 gives us 132 pi is equals to 32 pi is no, हाँ, plus of
plus of 8 pi h. Can I say when this will be subtracted on this side, so it's going to give us 100 pi is equals to 8 pi h. What will happen beta? Pi और pi cancel. H की value क्या आएगी? H की value is supposed to be 100 over 8 and that is going to be 50 over 4. मजीद simplify करोगे तो 25 over 2 which is 12.5. ठीक है, चलो वर्क आउट द हाइट ऑफ सॉलिड ए. सॉलिड ए कैसे निकलेगा बेटा? इसकी हाइट बतानी है बेटा. हाइट कौन सी होगी पहले तो ये देखकर मुझे बताओ. Can I say the height which the examiner is concerned about is going to be something like this? This part. Do we get this part? Yes or no? क्या बात समझ आती है? हाँ, Yes. लिख सकते हैं. ठीक है, सो अब हम ये कैसे करेंगे? Can I say it can be broken into two portions, this part and this part. ठीक है, सो टॉप वाला पार्ट कैसे निकलेगा? How can we Pythagoras find the निकालो। top part? Can we say Pythagoras से? तो जब हम top part निकालेंगे so कैसे आएगा? That was 10 and this was 6. आपने x find करना है, so this is going to be 10 square is equal to 6 square plus of x square, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? That is going to be under root of 100 minus of 36 and x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से root of 64 which gives us 8. ठीक है, so मेरे पास ये हाइट क्या आई बच्चों? This height is supposed to be 8. ये वाली हाइट क्या होगी? What is this height? 6 क्यों 6 होगी? Because ये स्फेयर ना बच्चे, स्फेयर इज रेडियस, हर जगह इसका रेडियस बराबर होगा. ये भी 6 है तो ये भी 6. So the total height is going to be what? Can I say it's going to be 8 plus 6? Yes or no? Yes. ठीक है, so we are going to write this. चलो 17. A bag contains 6 red marbles, 3 green marbles and 1 blue marble. ठीक है, so 6 red, 3 green and 1 blue. 2 marbles are, how is that 6? बेटा मुझे बताओ, क्या एक स्फेयर हर जगह से रेडियस उसका बराबर होगा? ये हेमिस्फेयर था, सो यू ड्रॉ इट लाइक दिस. सो हेमिस्फेयर का बेटा ये भी रेडियस 6 था तो ये भी 6 नहीं होगा क्या? ठीक है, अच्छा चलो, हमारे पास कहता है बैग कंटेन 6 रेड मार्बल्स, 3 ग्रीन मार्बल्स एंड 1 ब्लू मार्बल. 2 मार्बल्स आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द बैग विथ रिप्लेसमेंट. तो विथ रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन गाइस? क्या मतलब है इसका? फटाफट बता दो. व्हाट वी नो, put it back. शाबाश. So हमारे पास find the probability that both marbles are green. बेटा without tree diagram बनाना है. So can I say both marble greens का मतलब it would mean G and G, right? But the question is, हाँ total would be same. Let's see. But the question is, क्या इसकी आपस में arrangement matter करेगी या नहीं करेगी? Will it make a difference? बिकॉज हमने ट्री डायग्राम के बगैर जब प्रोबेबिलिटी की थी तो हमें अरेंजमेंट को भी कंसिडर करना था. बट फिर दिस केस देयर इज गोइंग टू बी नो अरेंजमेंट, क्योंकि पहला जी हो दूसरा जी हो या पहला जी, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, राइट? इट्स द सेम थिंग. सो हमारे पास ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या थी बच्चे? ग्रीन की प्रोबेबिलिटी ग्रीन थे 3. सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन लेंगे विच वाज 3 अपॉन द टोटल. बेटा 6 plus 3 is 9, 9 plus 1 is 10. सो 3 over 10 टाइम्स ऑफ 3 over 10. तो क्या आंसर आएगा? विच इज गोइंग टू बी 9 over 100. इज दिस पार्ट क्लियर? अब्दुल्ला क्लियर है? बात समझ आई अब्दुल्ला नबी? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट देखो. अनदर बैग कंटेन्स 4 रेड काउंटर्स, 2 येलो काउंटर्स. 2 काउंटर्स आर पिक्ड एट रैंडम दिस फ्रॉम दिस बैग विदाउट रिप्लेसमेंट. अब रिप्लेस नहीं कर रहे हो मतलब अगर आपने कोई चीज या चॉकलेट काउंटर जो भी है अगर आपने कंज्यूम कर लिए, दैट मीन्स अब टोटल में से वो कम हो जाएगा, अब वो आप यूज दोबारा नहीं कर सकते. द काउंट वुड बी डिफरेंट. ठीक है, तो एक बात को समझो, अगर मेरे पास रेड 4 over 6 थे, अब 3 over 5 हो गए. सो दिस कैन बी डन इजीली विदाउट एनी कैलकुलेशन विच इज गोइंग टू बी शाबाश. 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 2 over 5, इजी कैलकुलेशन. नाउ कंसीडर दिस टू बी येलो. बेटा जब मैं येलो से दोबारा येलो पे जाऊंगा, कहना है से एक तो पहले तो टोटल तो कम होगा, उसमें तो कोई बहस नहीं है, राइट? सो द टोटल इज गोइंग टू बी 5 फॉर दिस केस एंड द 5 फॉर दिस केस एज वेल. ठीक है, अच्छा now that I had 2 and considering my first pick was yellow, तो बेटा दोबारा येलो आपके पास एक कम हो जाएगा which is going to be 1 over 5 और यहाँ पे लेफ्ट ओवर क्या हो जाएगा which is going to be 4 over 5. ठीक है, any difficulty with this part? कोई मसला? ठीक है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द टू काउंटर्स इज येलो. बेटा इसको करने के लिए पहले आप सैंपल स्पेस अच्छे से लिख लो. रेड रेड, रेड येलो, ठीक है, येलो रेड एंड येलो येलो. मुझे बताओ कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हम सेलेक्ट करेंगे? डू वी सेलेक्ट फर्स्ट केस? यस और नो? डू वी सेलेक्ट फर्स्ट केस? यस और नो? नो. व्हाट अबाउट द सेकंड केस? डू वी सेलेक्ट इट?
Yes. What about the third case? Yes. Fourth Yes. करेंगे? Yes or no? Fourth करेंगे? Yes. नहीं करेंगे. क्यों करेंगे? बेटा उसने क्या कहा था? एक काउंटर येलो होना चाहिए. क्या उसने कहा था? एटलीस्ट वन शुड बी येलो. क्या कहा था? देयर इज अ डिफरेंस. उसने एटलीस्ट नहीं कहा, उसने कहा था एक येलो होना चाहिए. सो दो येलो आपको नहीं चाहिए. सो यू आर नॉट गोइंग टू काउंट दिस. ठीक है, बिकॉज वी वर ओनली सपोज टू सेलेक्ट वन येलो. फॉर दिस केस वी हैव टू येलोज. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टिंग वन येलो एंड एटलीस्ट वन येलो. देयर इज अ डिफरेंस इन दिस स्टेटमेंट. ठीक है, सो आपने क्या करना है? यू आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस पाथ. आपने दो पाथ सेलेक्ट करने, एक ये वाला पाथ होगा और दूसरा ये वाला पाथ होगा. ठीक है, सो आपके पास क्या हो जाएगा? 4/6 इंटू 2/5 प्लस 2/6 इंटू 4/5. ठीक है, सो 4 2s are 8/30 प्लस ऑफ 4 2s are अगेन 8/30, जो कि क्या हो जाएगा? 16/30. सिंप्लीफाई कर लोगे तो करना चाहो कर लो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18. Question 18 says, one day Anya runs 12 kilometers at a speed of नहीं, इट डिपेंड्स. मर्जी है. इस केसेस में प्रोबेबिलिटी में इट्स नॉट नेसेसरी. प्रोबेबिलिटी में करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी इट्स फाइन. बट फॉर अदर क्वेश्चंस यू आर सपोज्ड टू सिंप्लीफाई. फॉर प्रोबेबिलिटी इवन इफ यू लीव इट एज इट इज, इट्स फाइन फ्रैक्शन में. अच्छा, वन डे आनिया रन्स 12 किलोमीटर्स. ठीक है, at a speed of x kilometer per hour, and the next day she walks 10 kilometers at a speed of x minus 4. कहता है फाइंड राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द टाइम शी स्पेंड्स रनिंग. बेटा क्या बताना है? राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x. और क्या बताना है हमने? फॉर द टाइम. हमें टाइम बताना है जो कि आवर्स में होना चाहिए. सो हाउ डू वी कैलकुलेट? डू वी नो द फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस ओवर टाइम. वेयर हमें फाइंड करना टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा? विच इज गोइंग टू बी डिस्टेंस ओवर स्पीड. ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर द केस ऑफ रनिंग क्या था बेटा? दैट वाज 12/x. नाउ वन थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. ठीक है, नहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा ये बात. वन थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इन वर्ड प्रॉब्लम्स में, वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर द केस ऑफ एल्जेब्रा. जो एल्जेब्रा के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, एग्जामिनर यूनिट में बहुत तंग करता है. सो मेक श्योर यू कंसिडर द यूनिट्स वेल. बेटा यहाँ पे किलोमीटर पर आवर था और ये किलोमीटर था और ये किलोमीटर पर आवर था. सो टेल मी, आर वी सपोज्ड टू कन्वर्ट एनीथिंग फॉर दिस केस? कोई जरूरत है इसमें? फॉर दिस No. क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन वी आर नॉट सपोज्ड टू डू एनीथिंग. ठीक है, अच्छा पार्ट बी देखो. राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, फॉर द टाइम शी स्पेंड्स वॉकिंग. वॉकिंग का बता दो क्या हो जाएगा? सेम कर लोगे, डिस्टेंस ओवर स्पीड. व्हाट वाज द डिस्टेंस फॉर वॉकिंग? दैट वाज 10 kilometers. ओवर. What was the speed? That was X minus 4. x minus 4. Again, यूनिट्स को केयरफुली देख लेना. क्या इस केस में यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत है? सो इस केस No. में यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. लकीली इसमें एग्जामिनर ने ज्यादा तंग नहीं किया. बट फॉर द केस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, इफ यू अटेंडेड वीडियो लेक्चर्स या पहले अगर आपने क्लास अटेंड किया, आपने देखा होगा इसमें एग्जामिनर यूनिट्स में बहुत ज्यादा तंग करता है. सो व्हेनेवर यू अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस, यूनिट को ध्यान से देखना है. ठीक है, क्योंकि एट टाइम्स आपको इसमें यूनिट कन्वर्जन करनी है. अब देखो कहता है द टाइम आनिया स्पेंड्स वॉकिंग 1 hour is more than the time she spends running. ठीक है, सो आपने क्या करना है इन वर्ड प्रॉब्लम्स में? आपने लिखना है वॉकिंग और फिर लिखा आपने रनिंग. ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हैं? द टाइम आनी स्पेंड्स वॉकिंग इज 1 hour मोर. तो बेटा वॉकिंग वाला ऑलरेडी ज्यादा है बाय 1 hour और रनिंग वाला कम है बाय 1 hour. ठीक है, अब आपने दोनों की किस चीज के बारे में बात हो रही? आवर्स की कन्वर्जन है, राइट? एंड डिड यू ऑलरेडी हैव दीज इन आवर्स? तो क्या ये तीनों चीजें आवर्स या मतलब टाइम के बारे में बात हो रही है? ऑल थ्री क्वांटिटीज ओवर हियर, यस और नो? Yes. तो मैं क्या Yes. करूँगा? वॉकिंग की जो वैल्यू थी बेटा, वॉकिंग की वैल्यू थी 10/x minus 4, whereas for the case of running the value was 12/x. Now my question is, are these two equal at this moment? क्या ये दोनों बराबर है in time? No. No. टाइम में बराबर नहीं है, राइट? सो I'd say फिलहाल I'd forcefully say that these are equal. ठीक है, लेकिन ये अभी इक्वल थे नहीं. तो इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? व्हाट वाज द डिफरेंस? द डिफरेंस वाज ऑफ 1 hour. अब सवाल को जरा इस बात से समझो बेटा, ये ऑलरेडी ज्यादा है, ये ऑलरेडी कम है. ठीक है, इन अ बास्केट यू ऑलरेडी हैव अ ग्रेटर क्वांटिटी एंड अ लेसर क्वांटिटी. नाउ इन ऑर्डर टू मेक दीज इक्वल, आप 1 hour कहां पे ऐड करोगे? कम वाले में ऐड करोगे? काम वाले पे. कम वाले में ऐड करोगे, राइट? सो आपने यहाँ पे ऐड 1 यहाँ पे कर दिया. डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? यस और नो? बात समझ आई?
ठीक है। नाउ Yes. नाउ यू बैलेंस द इक्वेशन बाय, पहले ये बैलेंस नहीं थी बट आपने इक्वल फोर्सफुली किया और वो जो डिफरेंस था वो आपने वहां पे ऐड करके दोनों को बराबर कर दिया। नाउ यू सॉल्व इट टू प्रूव। ठीक है, सो अब आप इसको प्रूव कर लोगे। 10 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, दिस इज गोइंग टू बी 12 प्लस x ओवर x। सिंप्लीफाई कर लो। गाइस प्रूफ कर लोगे या नहीं? कर लोगे ना? आगे का क्वेश्चन इजी है, आगे यू कैन डू इट इजीली। x माइनस 4 टाइम्स ऑफ, बता दो कर लूं या कर लोगे खुद से? जल्दी से बताओ, कर लोगे प्रूफ? Yes. ठीक है, सो वंस यू डू इट, दिस इज द इक्वेशन दैट यू प्रूफ। अगर खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूव इट गाइस, आई बेग यू प्लीज डू नॉट स्किप आगे के क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चन स्किप नहीं करने। इवन अगर प्रूव नहीं हो रहा, आप आगे के इन तरीके के क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे? फैक्टराइजेशन कहिए। सो क्या मैं क्वाड्रेटिक कर सकता हूँ? कैन आई अप्लाई क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक से करने की गलती नहीं करना। व्हाई? बिकॉज फैक्टराइजेशन मींस यू आर सपोज्ड टू सॉल्व इट यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म से यहाँ पे दो वैल्यूज निकाल लोगे। फिर कहता है फाइंड द टाइम आन्या रन्स स्पेंड्स रनिंग। बेटा रनिंग का टाइम क्या निकाला था आपने? रनिंग का था 12 ओवर x। तो क्या करोगे यहाँ पे? अब टाइम कैसे निकलेगा? कैन आई प्लग इन द वैल्यू ऑफ x व्हिचएवर वैल्यू ऑफ x वाज पॉजिटिव? ठीक है, कर लोगे? गुड जॉब। जो भी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी यहाँ पे प्लग इन कर लेना। वर्ड प्रॉब्लम जो अलजेब्रा के आते हैं ना, एक ही तरीके के घिसे पिटे सवाल होते हैं, आपके अल्फाज वर्ड चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज सेम फॉर दीस क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा इसका वी आर ऑलमोस्ट डन, बस लास्ट क्वेश्चन आई थिंक फॉर ओ लेवल्स। अब इस सवाल को देखो, इंटरेस्टिंग सवाल है। द क्वेश्चन सेज OABC इज अ rhombus। OABC क्या है बच्चे? OABC इज अ rhombus where OABC is a rhombus and O is your origin। ठीक है, O आपके पास origin है, starting point है। The diagonals of the rhombus intersect at P। diagonals P पे intersect करते हैं and OP is 2m and AP is n। मतलब यहाँ से यहाँ तक n है और यहाँ से यहाँ तक 2m है। ठीक है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ OA। फाइंड क्या करना है? OA करना है। अच्छा इस बात को पहले समझो, पहले रॉम्बस समझो शेप क्या होता है ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सबसे पहले तो ये समझो, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये पैरेलल हो या ना हो। ठीक है, अच्छा रॉम्बस क्या शेप होता है गाइस? रॉम्बस इज अ शेप वेयर, rhombus is a shape where you say that आपके पास चार साइड्स बराबर होती हैं। इफ आई ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, कि यहाँ पे है ना हमारे पास, यहाँ पे चारों साइड्स बराबर होंगी एंड इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज अ rhombus एंड rhombus की प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ rhombus इज बेसिकली, आपके पास एक तो चारों लेंथ बराबर होती हैं एंड दी diagonals are what? Diagonals are drawn at 90 degrees। diagonals कितने डिग्रीज पर बनते हैं? 90 डिग्री पर बनते हैं। they are perpendicular to each other। ठीक है, so this is what you should know first of all। अच्छा अब सेकंड चीज को देखो। अब सेकंड चीज आपने ये समझनी है इसमें कि आपको अगर फाइंड करना है OA बेटा, सो अगर इफ आई एम सपोज टू फाइंड OA, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द पाथ? मेज गेम अगर हम इसमें खेलें, अगर हम वो गेम खेलें स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट वाली, मुझे बताओ OA कैसे फॉर्म करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू गेट OA? OP प्लस PA। शाबाश। तो बेटा OP की वैल्यू क्या थी? डू वी नो दैट OP वैल्यू वाज 2m प्लस ऑफ PA। PA की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट इज द वैल्यू फॉर PA? माइनस n। शाबाश। तो 2 माइनस माइनस n, शजीन इट्स माइनस n। ठीक है, सो 2m माइनस n। ठीक है, सो 2m माइनस ऑफ n। अब हमने एक और बात समझनी है, OC। OC को देखते हैं, अगर मुझे OC फाइंड करना है, अब OC के लिए क्या पाथ सेलेक्ट करोगे? जल्दी से रास्ता बताओ, कौन सा रास्ता सेलेक्ट करोगे OC के लिए? व्हाट इज द पाथ दैट यू सेलेक्ट फॉर OC? OP प्लस PC। शाबाश। तो बेटा OP की आपको वैल्यू पता है, PC की बता दो क्या होगी? OP की वैल्यू इज, शाबाश, OP की वैल्यू इज 2m प्लस PC की वैल्यू इज n। नाउ यू माइट बी वंडरिंग सर ये n तो मैं नहीं पता था। बेटा रोम्बस की प्रॉपर्टी कहती है कि ये वैल्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर। इसका मतलब क्या है कि अगर ये n था तो ये भी नीचे की तरफ n होगा, सो इसका मतलब PC इज गोइंग टू बी n। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। बात समझ आई? यस और नो? इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो लास्ट पार्ट पे आ जाओ, द इंटरेस्टिंग पार्ट। दिस सेज D is the point, D is a point such that AD is equals to 10m minus 3n। ठीक है, एक कोई D पॉइंट है जो कि 10m minus 3n पर एग्जिस्ट करता है। कहता है शो दैट OADC is a trapezium। क्या शो करना है? शो करना है OADC is a trapezium। व्हाट इज अ trapezium? ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी है?
फटाफट बता दो। लेट जस्ट रैंडमली सी, यहाँ पे कहीं कोई रैंडम सा पॉइंट था, रैंडम सा कर रहा हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब्दुल्ला नबी ये देखो बेटा 2m और ये था ना, सो हमें ओ ए जाना था बच्चे इस रास्ते में। तो मुझे बताओ अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, क्या मैं एग्जामिनर की डायरेक्शन फॉलो कर रहा हूँ या मैं लड़ रहा हूँ एग्जामिनर से? एम आई फॉलोइंग व्हाट एग्जामिनर सेड? आई एम नॉट फॉलोइंग व्हाट द एग्जामिनर सेड, हेंस आई एम गोइंग टू यूज एन ऑपोजिट साइन फॉर एन। इज दिस क्लियर? क्लियर है? हम यूं गए, ओ ए बेटा ये वाला वेक्टर था ना अब्दुल्ला, दिस इज द वेक्टर दैट वी वांटेड। ओसी में प्लस क्यों हुआ? क्योंकि ओसी बेटा क्या था, ओसी के लिए पाथ क्या था जरा देखो। लेट मी ड्रॉ दिस प्रॉपर्टी। डायरेक्शन मैटर्स इन वेक्टर्स। अगर मैं ये पाथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, सो कैन आई से मैं जाऊंगा कैसे? मैं जाऊंगा पहले यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा। डू वी एग्री? तो ये तो मैंने एग्जामिनर की डायरेक्शन फॉलो की एज इट इज 2m। यहाँ पे क्या मैंने एग्जामिनर की डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन फॉलो की? नहीं, मैं उल्टी डायरेक्शन में गया, तो मैं वैल्यू तो मैग्नीट्यूड तो सेम लूंगा बट विद एन ऑपोजिट साइन। ठीक है? ओसी में क्या मसला है देखो, अगर मैं ओसी सेलेक्ट कर रहा हूँ, सो ओसी के लिए आई थिंक मुझे आपने वैल्यू बताई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेटा ओसी का ये पाथ है, ओसी के लिए कहाँ जाओगे? एम आई गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, सो एम आई फॉलोइंग एग्जामिनर की डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्या मैंने एग्जामिनर की डायरेक्शन फॉलो की? बिल्कुल एग्जामिनर की डायरेक्शन फॉलो की। सो डायरेक्शन प्लेज अ की पार्ट। ठीक है? अच्छा सवाल देखो, डी क्या कह, ये क्या है, बी क्या कह रहा है? इट्स डी इज अ पॉइंट सच दैट ए डी इज इक्वल टू 10m-3n। ठीक है? कोई पॉइंट है डी जहां पे ए डी आपके पास होगा 10m-3n। कहता है शो दैट ओ ए डी सी इज अ ट्रेपीजियम। बेटा ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? ट्रेपीजियम शेप कैसा होता है? व्हाट इज अ ट्रेपीजियम? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम बता दो गाइस। पैरेलल लाइंस, कितनी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस? कितनी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस फटाफट बताओ। वन, मतलब एक सेट होगा ना, वन सेट वुड बी पैरेलल। ठीक है? मतलब दो लाइंस पैरेलल होंगी बट दैट वुड बी नोन एज वन सेट। ठीक है? सो वी कैन से ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके से होता है जहां पे एक सेट पैरेलल होगा और दूसरा पैरेलल नहीं होगा। ठीक है? अच्छा अब हमें कह रहा है कि ओ ए डी सी, सो हम जल्दी से देख लेते हैं बेटा। ओ ए डी कहीं एग्जिस्ट करेगा, फिर सी है। लेट जैसे रैंडमली मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कहीं यहाँ पे डी आ गया, सो आई ड्रॉ द शेप लाइक दिस। ठीक है? सो ओ ए डी सी मेरे पास कुछ इस तरीके का ट्रेपीजियम बन रहा होगा। ठीक है? जस्ट रैंडमली आई एम ड्रॉइंग इट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट। इस बात को जरा गौर से समझना। ठीक है? कुछ ऐसा अजीब गरीब सा शेप बन रहा होगा विच वी आर स्टिल नॉट श्योर बट समथिंग लाइक दिस। अब वी डू नॉट नो एग्जैक्ट कैसा शेप होगा, बस इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट की हद तक समझो कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है? अच्छा कुछ इस तरीके का केस है। अब इसका क्या मतलब है, बिकॉज ये मैंने रैंडमली ड्रॉ किया है, तो आई एम नॉट श्योर ईदर दिस पेयर वुड बी पैरेलल और दैट पेयर वुड बी पैरेलल। डू यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? या तो ये पेयर पैरेलल होगा या ये पेयर पैरेलल होगा। आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैव जस्ट रैंडमली ड्रॉन एन इमेज एंड आई एम नॉट श्योर ये शेप कैसा बनेगा। ठीक है? कोई एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकते। अच्छा पेयर कौन कौन सा होगा जरा देखो, या तो ओ ए एंड सी डी होगा। कैसा होगा? ओ ए एंड सी डी, or it's going to be AD and OC. Do you understand this? AD and OC. Do you understand this? ठीक है चलो। अच्छा अब हम क्या करने लगे हैं, जरा गौर से देखिएगा। अब मैं चेक करूंगा पैरेलल को फाइंड आउट करने के लिए रूल क्या कहता है गाइस। व्हाट इज द रूल टू फाइंड आउट वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल और नो? जल्दी से बताओ। डू वी नो? जल्दी से बताओ। बाइसेक्टर नहीं, पैरेलल के लिए बेटा। हाउ डू वी नो वेदर और नॉट टू लाइंस आर पैरेलल? स्केलर मल्टीपल्स। गुड जॉब। सो बेटा OA और CD को देख लो बेटा। क्या OA की वैल्यू नोन है? OA की वैल्यू इज नोन which is 2m-3n, तो इसकी वैल्यू थी 2m-n, सॉरी दिस इज द वैल्यू ऑफ OA। बेटा CD कैसे निकलेगा गौर से देखो। CD अगर मुझे निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड CD, कैन आई से इट्स गोइंग टू बी CA plus AD? डू आई अंडरस्टैंड दिस पार्ट? यस और नो? क्या ये बात समझ आती है मुझे? ठीक है? तो ये क्या होगा, ये होगा CA plus AD
डू आई नो द वैल्यू ऑफ सी ए फ्रॉम दिस वेक्टर? क्या मुझे सी ए की वैल्यू पता है? ठीक है, क्या मुझे सी ए की वैल्यू पता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी ए? इस सी ए की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बता दो। 2n, पॉजिटिव और नेगेटिव? -2n, शाबाश, -2n गाइस, नॉट पॉजिटिव, अदर डायरेक्शन में जा रहे हैं, सी ए जा रहे हैं, एग्जामिनर के खिलाफ जा रहे हैं। वी आर नॉट फॉलोइंग व्हाट द एग्जामिनर सेड, वी आर सेइंग एग्जामिनर इज स्टूपिड, वी आर नॉट फॉलोइंग व्हाट ही सेड। एग्जामिनर सेड n इस डायरेक्शन में, बट हम उल्टा रास्ता गए हैं, सो इट्स गोइंग टू बी -2n, ठीक है। प्लस AD क्या होगा बेटा? AD की वैल्यू गिवन है 10m-3n, तो प्लस, so what is this vector? Can I say this is 10m minus of 5 and now think about these vectors. अब हमें कैसे पता चलेगा whether or not these are parallel? बेटा आप m को सॉल्व करो, n को सॉल्व करो, m को करोगे, so can I say it's going to be 10/2, ठीक है, which gives us 5, and आप n को करोगे, so n के लिए -5/-1, so -5/-1, this also gives us what? This also gives us 5. So can I say this is the value of k, which is 5? So you can say that OA is parallel to CD. OA किसके parallel है guys? OA is parallel to CD, ठीक है। OA is parallel to what? CD, where which was the bigger vector? आपके पास ये वाला वेक्टर बिगर था, ठीक है, ये वाला वेक्टर क्या था? CD was bigger. So आप क्या कहोगे? CD is 5 times of A. Do you get this part? Yes or no? Hence this is OA over CD. वो भी कर सकते हो, फिर आपके पास यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, वो भी कर सकते हो, दैट इज करेक्ट एज वेल, दैट इज करेक्ट एज वेल, वो भी सही है, ठीक है। बट मेक श्योर दैट यू राइट अ स्टेटमेंट दैट दीज आर पैरेलल वेक्टर्स, बिकॉज ये स्केलर मल्टीपल्स हैं एंड आपके पास ये ट्रेपेजियम होगा। अच्छा, ये पैरेललोग्राम भी हो सकता था, बट आप ये कैसे प्रूव करोगे पैरेललोग्राम नहीं है? बिकॉज ये आपके पास स्केलर मल्टीपल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन शो दैट दीज आर नॉट स्केलर मल्टीपल्स, ये स्केलर मल्टीपल्स नहीं होंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी स्केलर मल्टीपल। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इज दिस पार्ट क्लियर? जल्दी से बता दो, डू यू गेट दिस कॉन्सेप्ट? बात समझ आई? यस और नो? जल्दी से बता दो। Say yes or no. Is this clear? No. You know what parallel vectors are या scalar multiples are, बुरैद? हाँ, पैरेललोग्राम क्यों नहीं है बेटा? अच्छा पहले मुझे बताओ, क्या ये हमारे पास ये पैरेलल प्रूव हुआ? पहले ये बताओ, क्या ये पैरेलल प्रूव हुआ? ठीक है, अब आप इसको भी चेक कर लो, अगर तो ये पैरेलल होगा तो ये पैरेललोग्राम होगा, अगर ये पैरेलल प्रूव नहीं हुआ तो ये ट्रेपेजियम होगा, तो इसमें वन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होंगी। क्लियर? तो आप इसका भी स्केलर मल्टीपल निकाल के देख लो, AD and OC. डू वी हैव AD and OC? AD and OC, AD और OC है ना, बैठे बैठे कर लो बेटा, ये देख लो, ये देख लो, AD भी है हमारे पास 10m-3n, और OC ये रहा। बेटा बताओ, ये कहीं से भी स्केलर मल्टीपल है? यहाँ पे 5 का मल्टीपल है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, दीज आर नॉट पैरेलल वेक्टर्स बिकॉज स्केलर मल्टीपल नहीं है, ठीक है। सो हेंस दिस इज व्हाट, दिस इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। चलो, अच्छा बुरैद बेटा आपको मैं पूछ रहा था, डू यू नो व्हाट स्केलर मल्टीपल्स आर, बुरैद? अच्छा guys, for O levels I think the paper is over, so if you guys want to leave, you guys can leave. Now we'll be doing the remaining questions for IGCSE students. The class should be over for O level students, ठीक है। So if you have no questions, you guys can leave. अच्छा बुरैद, अगर स्केलर मल्टीपल्स नहीं पता तो बेटा I'd suggest फिर वीडियो लेक्चर देख लो, अच्छे खासे रिकॉर्डेड लेसन्स हैं, just go through it and then we can discuss it, because फिर वरना मुझे पूरा टॉपिक समझाना पड़ेगा इन डिटेल, ठीक है। सो गो वॉच द वीडियो लेक्चर्स ऑफ दिस, अपलोड किए मैं सारे ड्राइव पे, उसके देख लो एंड फिर get back to me and I'll answer it, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अच्छा, for IGCSE students, what were you supposed to do? ये वाला क्वेश्चन कहता फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x, गाइस हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे जल्दी से बताओ। हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द एग्जैक्ट साइन? साइन से क्या करोगे, चलो बताओ, साइन ऑफ 30, फिर क्या करोगे? साइन ऑफ 30 की वैल्यू पता है हमें, 1/2 होता है, ठीक है। साइन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला इज गोइंग टू बी व्हाट, ऑपोजिट ओवर hypotenuse. So the sin 30 is 1/2 is equals to opposite 6 over hypotenuse, which is going to be unknown. So h की वैल्यू क्या हो जाएगी?
12. So this is what we know 12. इससे तो ये x तो अभी भी नहीं आया, फिर पाइथागोरस लगा लेंगे। पाइथागोरस लगा लेंगे। चलो पाइथागोरस से कर सकते हैं। So when we do that, it's going to be root of 12. It's going to be 12 square is equals to 6 square plus of x square, and 144 is equals to 36 plus of x square, and 144 minus of 36 क्या होगा? जल्दी से बता दो. What is this going to be? 108, I believe, right? 108 is equals to x square, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? That is going to be root of 108. इसको कैसे सॉल्व करोगे? सेट्स के प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट से. So this is going to be 2, and this will be 54, 2, 27, 3, which is going to be 9, 3, which is going to be 3, and 3 is going to be 1. So you can write 108 to be what? 2 into 2 into 3 into 3 into 3, where these are pairs. कौन से पेयर्स हैं? ये भी पेयर है हमारे पास बच्चे, और ये भी पेयर है. ये नंबर बाहर आ जाएंगे. So this will become what? 2 times of 3, which is 6 root of 3. Is this part clear? जल्दी से बता दो क्या बात है. ठीक है, चलो भाई यही 2 क्वेश्चन थे ना? हाँ बस लास्ट क्वेश्चन है. चलो, a curve has this equation and we are supposed to find out the value of n and the value of q. बेटा हमारे पास इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्म बनेगा. इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? वी नो इट्स गोइंग टू बी nx n-1 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू प्लस ऑफ 2qx पावर 1 प्लस ऑफ 9. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, और हमारे पास ये किसके बराबर होगी? 3x स्क्वायर इज इक्वल 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 9. तो क्या मैं कह सकता हूं कि n की वैल्यू क्या होगी? इट्स गोइंग टू बी 3, और मेरे पास q की वैल्यू क्या होगी? दैट इज गोइंग टू बी 2q is equals to minus of 12, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ 6. इज दिस पार्ट क्लियर? बात समझ आई है? एनी डिफिकल्टी विद दिस? जल्दी से बताओ, कोई मसला है यहाँ पे? ऑल गुड? चलो, moving on to the next point. It says work out the coordinates of the turning point of the curve. बेटा turning point कैसे निकलता है? Turning point आपके पास निकलता है. What do we know about turning point? The gradient is supposed to be 0. Gradient किसके बराबर होता है? dy by dx के. So you're going to say where minus of 12 x plus of 9. This can be simplified by dividing by 3. So it's going to be x square minus of 4 x plus of 3 is equal to 0. कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी x माइनस 3. कॉमन आपने x लिया था, x माइनस 3 माइनस ऑफ 1 एंड x माइनस 3. ठीक है, x माइनस 3 एज वेल. तो आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम बने, ये भी सेम बना. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? इट्स गोइंग टू बी x माइनस 1 एंड 3 is equal to 0. तो बेटा एक 1 होगा और एक 3 होगा. Now that you have 1 and 3, what are you going to do? You're going to plug in these values inside the actual equation where you know the value of n and q. तो y क्या था बेटा? Y was supposed to be x power 3 plus of or minus of 6x square minus of 6x square plus of 9x. बेटा यहाँ पे आपने बारी बारी वैल्यू ऑफ x प्लग इन करनी है and you can find out the corresponding y. कर सकते हो? कर लेंगे? Yes. Okay, so this is what you're supposed to do, and you repeat the same process for this. I hope this was easy. So that's about it for the paper. Let me know if there are any confusions. Otherwise, we'll call it a day. ठीक है? सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, उसके वजह से कंफ्यूजन